Welcome dear students and friends to this channel. Today I will teach you two important applications of stack. So the first one is Fibonacci series and the next one is Towers of Hanoi problem. So in previous lectures also I discussed few important applications of stack like recursion and its types and prefix to postfix conversion, tree traversal techniques, infix to postfix conversion, and also postfix evaluation. So those who want to learn these topics, they can refer my previous videos. Okay, now let us move ahead. So firstly we will see Fibonacci series. Okay, so what is Fibonacci series? So this is Fibonacci series. Say for example it is n. Okay, n is a number and this is the Fibonacci of that number. This is the Fibonacci. So first of all, जीरो का फिबोनाची क्या होगा? जीरो फिबोनाची is 0 and Fibonacci of 1 is 1. So basically series is this. What is series? So firstly the series will start from 0, then 1, then add previous two values to get this. तो पहला फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होता है 0 से, फिर 1 से, फिर जो ये नंबर आएगा ये इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों का एड अप होगा. ठीक है, इन दोनों का एड अप कितना होगा? 1. फिर नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो क्या होगा? वो इन दोनों का एड अप होगा. ठीक है, इन दोनों का एड अप होगा. सो दैट विल बी 2. नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या होगा? वो हमारा इन दोनों का एड अप होगा. ओके, तो सक्सेसिवली इस तरीके से हमारे नंबर्स आएंगे. तो क्या होगा? 2 + 1 is 3. फिर प्रीवियस टू नंबर्स का ऐड करेंगे तो 3 + 2 is 5, then 5 + 3 is going to be 8, then 8 + 5 is going to be what? 13, and 13 + 8 is 21, 21 + 30, 13 is going to be 34, and 34 + 21 is 55, and this series will go to infinite like this. So basically this is the Fibonacci series, but we are interested to find Fibonacci value of a particular number. Say for example like this कि 0 का फिबोनाची क्या होगा? 0 होगा, है ना. 1 का फिबोनाची क्या होगा? 1 का फिबोनाची होगा 1. फिर 2 का फिबोनाची क्या होगा? लास्ट टू फिबोनाची वैल्यूज का सम. तो 0 + 1 is 1. ओके, देन 3 का फिबोनाची क्या होगा? सो अगेन लास्ट टू वैल्यूज की फिबोनाचीज का सम. सो इट इज 1 + 1 2, एंड सिमिलरली हम आगे अहेड मूव करेंगे. तो randomly if I will ask that what is the Fibonacci of 7, so simply you will say that Fibonacci of 7 is what? Fibonacci of 7 is going to be 13. So this we are supposed to find, है ना, this particular problem. So in general we are given a number, say n, arbitrary number, and we have to find what? Fibonacci of that number. So Fibonacci of n we have to find. So to solve this problem or to find Fibonacci of a given number, stack is very important and useful data structure, okay, for solving this type of problem. So let us see how this will solve. So this is a definitely it uses what? Stack, that means it is a recursive program. So this is your going to be initial condition. These two conditions are what? Initial condition. So these two conditions are initial condition. These two are initial or say termination condition. Termination condition. तो वी नो कि अगर n की वैल्यू 0 होगी तो 0 का फिबोनाची 0 होगा तो 0 रिटर्न कर देगा. 1 का फिबोनाची 1 होगा तो 1 रिटर्न कर देगा. ओके, सो दिस इज. अब रिकर्सिव स्टेप क्या होगा इसमें? एल्स पार्ट में आएंगे, और एल्स में हमें अगर 0 और 1 नहीं है, कोई और नंबर है, तो उसका फिबोनाची फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रीवियस टू नंबर्स का फिबोनाचीज की वैल्यूज को सम करना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी देयर इन एल्स पार्ट? सो द वैल्यू इज व्हाट? रिटर्न क्या करेंगे? n की वैल्यू का फिबोनाची फाइंड करना था, तो n - 1 की वैल्यू फिबोनाची, n - 2 प्रीवियस टू वैल्यूज और उनका एड ऑन. ये जो वैल्यू आएगी रिटर्न करना है. ओके, सो दिस एंटायर वैल्यू इज नथिंग बट अ फिबोनाची ऑफ योर n. सो दिस इज द फिबोनाची ऑफ योर n. okay, so I hope that this is very much evident. So this step is what? This step is your recursive step. This entire step, this is your recursive step. So it is a recursive program, recursive step, and a function call.
ओके, सो लेट अस सी हाउ दिस विल हैपन। तो कीप इन माइंड कि अगर n की वैल्यू 0 है या 1 है तो सिंपली 0 है तो 0 फिबोनाची होगा, 1 है तो 1, और अदरवाइज प्रीवियस टू नंबर्स का फिबोनाची हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन फाइनली एडिशन करना पड़ेगा उनका। ओके, तो लेट अस सॉल्व फॉर एन रैंडम नंबर और सम आर्बिट्रेरी नंबर। So say for example, I am interested in finding what Fibonacci of, say for example, I want to find Fibonacci of, let us assume 5। तो Fibonacci of 5 के लिए इफ पार्ट मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज 5 इज नॉट इक्वल टू 0, 5 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसमें क्या होगा, दो फिबोनाकीज का सम निकालना पड़ेगा हमें। किन किन का निकालना पड़ेगा हमें, यहाँ निकालना पड़ेगा एक तो फिबोनाची ऑफ व्हाट n minus 1, so 5 minus 1 is 4, and again फिबोनाची ऑफ n minus 2, so 5 minus 2 is 3। तो इनकी लास्ट प्रीवियस टू वैल्यूज का फिबोनाची निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये हमें इस तरीके से इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ओके, सो फंक्शन कॉल पहले कहाँ आया, 5 के केस में पहले 4 पे आएगा, फिर यहाँ 4 को आपने जब कॉल किया तो 4 के केस में यहाँ फर्दर फिर दो स्प्लिट होंगे। तो इसका क्या होगा, पहले फिबोनाची ऑफ आपका 3 निकाला जाएगा, एंड देन फिबोनाची ऑफ क्या निकाला जाएगा आपका 2 निकाला जाएगा। ओके, फिर अगेन यहाँ पर फिबोनाची ऑफ 3 के केस में क्या आएगा, यहाँ पे आपको फिबोनाची ऑफ 2 निकाला जाएगा, और यहाँ पे आपका फिबोनाची ऑफ 1 निकाला जाएगा। देन 2 के केस में अगेन दो स्प्लिट्स होंगे, फिबोनाची ऑफ 1 एंड व्हाट फिबोनाची ऑफ 0। एंड फिबोनाची ऑफ 2 1 के केस में क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 1 का डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई विल शो यू हाउ दिस विल गो ऑन, है ना। देन फिबोनाची ऑफ 2 के केस में अगेन दो स्प्लिट्स होंगे, तो दो स्प्लिट्स में क्या आएगा, एक तो आएगा फिबोनाची ऑफ व्हाट, फिबोनाची ऑफ योर 1 previous two values, है ना, Fibonacci of what, Fibonacci of 0। and again for the 3, so the same thing will happen, that it is Fibonacci of what, it is 2, and again Fibonacci of what, Fibonacci of 1। अगेन फिबोनाची ऑफ 2 के केस में फिर क्या होगा, दो फर्दर स्प्लिट्स होंगे, तो दो स्प्लिट्स में आपका आएगा पहले फिबोनाची ऑफ व्हाट 1 एंड फिबोनाची ऑफ 0। अब आगे क्यों एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं मैं कि ये फिबोनाची ऑफ 1, देखिए लीफ नोट्स अगर हम देखें तो 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 0 एंड 1। सो ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर योर डायरेक्ट वैल्यू, है ना। 0 का वैल्यू 0 होगा फिबोनाची, 1 का 1 होगा। ओके, सो आई होप दैट दिस यू आर गेटिंग। Okay, so now let us take some random example. So I am interested in finding what Fibonacci of, let us assume 6। तो Fibonacci of 6, तो it is not 0, है ना, n की वैल्यू 0 नहीं है, 0 1 होती तो वो सिंपली डायरेक्ट रिटर्न होता, बट क्या होगा फिर इनके लास्ट टू वैल्यूज के Fibonacci हमें फाइंड करना पड़ेंगे। तो लास्ट टू वैल्यूज के जब हम Fibonacci फाइंड आउट करने जाएंगे, सो व्हाट विल बी द केस, तो यहाँ हमें Fibonacci निकालना पड़ेगा किसका, 6 minus 1 मीन्स 5 का, और यहाँ हमको फिबोनाची निकालना पड़ेगा 6 minus 2 मीन्स 4 का। ओके, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। 5 के केस में फिर अगेन दो, है ना, 2 टाइम्स स्प्लिट होगा। सो व्हाट विल बी द स्प्लिट, तो फर्स्ट इज व्हाट, फिबोनाची ऑफ 5 minus 1 is 4 and Fibonacci of 5 minus 2 is 3, and again here also two splits। so what are those, Fibonacci of 4 minus 1 is 3 and Fibonacci of 4 minus 2 is 2, है ना। फिर यहाँ पे 4 के केस में फिर क्या होगा, 4 के केस में आपके फिर से दो स्प्लिट्स होंगे, Fibonacci of 4 minus 1 is 3 and Fibonacci of 4 minus 2 is 2। अगेन 3 के केस में दो स्प्लिट्स होंगे यहाँ पे, तो दो स्प्लिट्स में आएगा Fibonacci of 2 एंड दिस इज व्हाट Fibonacci of 1, है ना। अगेन यहाँ इससे दो प्रीवियस वैल्यूज के Fibonacci फाइंड करना पड़ेंगे, तो Fibonacci of what 2
एंड हेयर व्हाट फिबोनाची ऑफ 1, और यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 2 minus 1 is 1 and फिबोनाची ऑफ 2 minus 2 is what, 0. ओके फाइन. तो अब यहाँ आएंगे 3 के केस में फर्दर 2 स्प्लिट्स होंगे. इट इज वेरी मच एविडेंट दैट 3 के केस में यहाँ 2 स्प्लिट्स होंगे. तो पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, फिबोनाची ऑफ 3 minus 1 is 2 एंड फिबोनाची ऑफ 3 minus 2 is 1. तो यहाँ 2 के केस में फिर फर्दर 2 स्प्लिट्स होंगे. तो ये 2 स्प्लिट्स क्या क्या होंगे, 2 स्प्लिट्स होंगे आपके फिबोनाची ऑफ 2 minus 1 is 1 एंड फिबोनाची ऑफ 2 minus 2 is 0. अब ये 1 के केस में डायरेक्टली वैल्यू 1 रिटर्न होगी. यहाँ 2 के केस में फिर फर्दर 2 स्प्लिट्स होंगे. तो 2 के केस में जो 2 स्प्लिट्स होंगी उनकी वैल्यूज क्या होंगी, पहली होगी फिबोनाची ऑफ 1 और नेक्स्ट होगी आपकी फिबोनाची ऑफ 0. फिर यहाँ फर्दर 2 के केस में 2 स्प्लिट्स होंगे. तो यहाँ होगा फिबोनाची ऑफ व्हाट, 2 minus 1 is 1. ऑब्जर्व वेरी वेरी केयरफुली. एंड फिबोनाची ऑफ 2 minus 2 is 0. नाउ 1 डायरेक्टली रिटर्न होगा. फिर 2 के केस में यहाँ पे 2 होंगे स्प्लिट. ओके, तो यहाँ 2 के केस में आपके 2 स्प्लिट्स होंगे. तो 2 स्प्लिट्स में एक होगा फिबोनाची ऑफ 2 minus 1 is 1 एंड फिबोनाची ऑफ 2 minus 2 is 0. एंड रेस्ट क्या होगा देखिए. बाकी फिर लीफ नोट्स सारे ऑब्जर्व करिए केयरफुली. तो लीफ नोट्स में इधर फिबोनाची 0 होगा या 1 होगा. तो ऑल द लीफ नोट्स इधर फिबोनाची 0 1 0 1 0 1 है ना. अब यहाँ एक और आपका क्या रह गया है यहाँ पे, अगर हम यहाँ केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, सो ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. तो सबसे पहले आपने 6 को जब कॉल किया था यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 6 को, तो 6 के कॉलिंग के लिए फिबोनाची ऑफ 5 पे कॉल गया होगा पहले, है ना. यहाँ तो बाद में जाएगा, ये तुमने ट्री एक्सपेंड करके पहले से रख लिया है. 6 के केस में पहले किसको जाएगा, 5 को, है ना. फिर उससे वैल्यू 2 माइनस करके जाएगा. तो 5 के केस में पहले जाएगा 4 पे. तो 4 के केस में पहले जाएगा यहाँ कहाँ, 3 पे. 3 के केस में पहले जाएगा 2 पे. ठीक है. तो 2 के केस में पहले कहाँ जाएगा, 1 पे. तो 2 के केस में 1 पे जाएगा. तो 1 का जब कॉल होगा यहाँ पे, तो 1 के कॉल में डायरेक्टली वैल्यू क्या रिटर्न की जाएगी, 1 रिटर्न की जाएगी. ठीक है. और फिर यहाँ क्या करना था, यहाँ एडिशन करना था. तो यहाँ पे जब एडिशन आपने किया, है ना, तो यहाँ प्लस करना था. लेकिन प्लस के पहले क्या करना है, ये आपने फिबोनाची ऑफ 0 कैलकुलेट करना था. फिबोनाची ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, सिंपली 0 और 0 प्लस 1. तो यहाँ मैं एडिशन को a से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. तो मैंने अभी क्या किया है, a1 फर्स्ट एडिशन किया, है ना. तो a1 स्टैंड्स फॉर एडिशन. हियर आई एम राइटिंग a1, a स्टैंड्स फॉर व्हाट, एडिशन, क्योंकि एडिशन करना है वैल्यूज का. तो यहाँ 0 प्लस 1 का रिजल्ट कितना आया, 0 प्लस 1 का रिजल्ट आएगा आपका कितना, व्हाट, 1 विल बी द आंसर हियर. ओके. एंड हियर 1 का कितना आएगा, 1 का सिंपली 1 रिटर्न होगा. फिर यहाँ सेकंड एडिशन क्या होगा, एडिशन नंबर 2. तो एडिशन नंबर 2 हुआ, तो 1 प्लस 1 3 का रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा. सिमिलरली फिर यहाँ राइट साइड में जाएंगे 4 के, तो 2 के फिर लेफ्ट साइड में यहाँ सबसे पहले फिर क्या रिजोल्व होगा, 1. तो 1 का फिबोनाची क्या आएगा, 1 का फिबोनाची 1 आएगा. 0 का फिबोनाची व्हाट, 0. एंड देन फिर इसका एडिशन होगा. तो नेक्स्ट एडिशन क्या हुआ, a3. लेट अस अज्यूम a3, है ना. a2 तक हो चुका है. तो इनका 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1 आएगा. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. फिर ये 4 का फिबोनाची अब कैलकुलेट हो सकता है, लेफ्ट राइट दोनों कैलकुलेट हो गए. तो 2 और 1, तो 2 और 1 ये नेक्स्ट होगा. ये हम नेक्स्ट ले लेते हैं a4 एडिशन. तो 2 और 1 इसका रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट आया 3. ओके. नाउ ये 5 का लेफ्ट हो चुका है. राइट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे नीचे जाएंगे पहले. ठीक है. तो सबसे नीचे जब हम गए, तो यहाँ हमने देखा कि सबसे पहले मुझे क्या मिला, यहाँ 1. तो 1 का क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है. यहाँ लाइक 0 का 0 आया था, 1 का 1 आया था, यहाँ 1 का 1 आएगा. फिर 0 का 0 आएगा. ठीक है. फिर यहाँ एडिशन होगा. तो एडिशन कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं. तो यहाँ 5th एडिशन होगा. लेट अस सपोज a5. इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 1 प्लस 0 इज 1. अगेन यहाँ 1 का होगा. फिर 3 का कैलकुलेट करने के लिए 2 का हो चुका है कैलकुलेट, 1 का होगा. तो 1 का कितना आएगा, 1 का 1 ही आएगा. तो 1 प्लस 1 इज व्हाट, 1 प्लस 1 इज 2. सो एडिशन नंबर 6. तो एडिशन नंबर 6 में रिजल्ट कितना आया, 2. फिर यहाँ पे एडिशन होगा, तो ये एडिशन नंबर 7 होगा. एडिशन नंबर 7 में 3 प्लस 2 का रिजल्ट कितना आएगा, 5. ठीक है. तो 5 का फिबोनाची कितना आया, 5 आया. देन यहाँ पर 1 का फिबोनाची 1. फिर है ना, फर्दर फिर राइट साइड में जाएंगे, तो फिर लेफ्ट 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 में कॉल आएगा, तो यहाँ आया. तो इसका रिजल्ट पहले इवेल्युएट होगा. फिर इसका होगा 0. ठीक है. फिर देन इन दोनों का रिजल्ट आएगा. तो है ना, दिस इज द एडिशन नंबर 8. So what is addition number 8? Addition number 8 is 1. Again 1 Fibonacci is 1. So this is what, addition number 9. So 1 plus 1 is what, 1 plus 1 is 2. नेक्स्ट ये लेफ्ट का हो गया आपका. राइट पे आएंगे,
तो फिबोनाची ऑफ 1 कैलकुलेट करना है, तो फिबोनाची ऑफ 1 आपका कितना आएगा, इट इज 1, फिबोनाची ऑफ 0 इज 0, देन दिस इज व्हाट, एडिशन नंबर 10. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. सो 1 प्लस 0 इज व्हाट, 1. देन अगेन दीज टू कैलकुलेटेड, तो 4 का फिबोनाची आ जाएगा, तो यहाँ एडिशन होगा, तो दिस इज एडिशन नंबर व्हाट, एडिशन नंबर 11. सो 11 में क्या आएगा, 2 प्लस 1 इज व्हाट, 3, तो यहाँ आया 3. फिर ये फाइनली एडिशन आपका ये कौन सा होगा, एडिशन नंबर 12. तो एडिशन नंबर 12 में आपका रिजल्ट कितना आया, 5 प्लस 3 दोनों को एड अप हो जाएगा, तो दिस विल बी 8. तो हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 8. ओके ओके. नाउ जो इवेल्युएशन हुआ, अगर हम इवेल्युएशन को केयरफुली ऑब्जर्व करें, फंक्शन का जो इवेल्युएशन हुआ, तो सबसे पहले कौन से फंक्शन को इवेल्युएट हुआ, अच्छा पहले फंक्शन कॉलिंग की बात करते हैं, ठीक है. तो मैं कॉलिंग के लिए पहले बात करता हूँ. ऑब्जर्व वेरी वेरी केयरफुली, है ना, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. तो पहले मैं बात करता हूँ किसकी, कॉलिंग की. सो लेट अस अज्यूम दिस C स्टैंड्स फॉर फंक्शन कॉलिंग. फंक्शन कॉलिंग, ओके. सबसे पहले फंक्शन कॉल ये हुआ, तो दिस इज C1. फिर इसके बाद ये हुआ होगा C2, फिर ये क्या हुआ, C3. तो ये अगर हम ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये क्या है, पहले नोड को हम काउंट कर रहे हैं, फिर उसके लेफ्ट पे आ रहे हैं, लेफ्ट के पहले फिर नोड को. तो नोड लेफ्ट राइट ये किसमें फॉलो होता है, ये होता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में, ठीक है. तो जो फंक्शन कॉलिंग का सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल. तो C2 C3, फिर क्या होगा, ये होगा हमारा C4, फिर देन दिस इज व्हाट, दिस इज C5, देन दिस इज व्हाट, दिस इज C6, फिर क्या होगा इसके बाद, ये C7 होगा, फिर देन ये होगा C8, ओके. देन फिर ये होगा हमारा C9, देन ये C10, नॉट C9, फंक्शन कॉलिंग है ना, सो दिस इज नॉट C9, सो दिस इज C9, है ना, ये C9 होगा. फिर ये लेफ्ट पे आएगा, तो दिस इज C10, दिस इज कॉल नंबर 11. फिर देन यहाँ पे आए तो ये कॉल नंबर 12 यहाँ होगा, है ना. फिर देन कॉल नंबर व्हाट 13 यहाँ होगा. देन फिर इसके लेफ्ट में आएंगे तो कॉल नंबर 14 ये हुआ, दिस इज कॉल नंबर 14, है ना. दिस इज कॉल नंबर 15, देन दिस इज कॉल नंबर 16. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, ओके. कॉल नंबर 16, फिर ये लेफ्ट कंप्लीट हुआ, तो ये फंक्शन कॉलिंग होगा आपका व्हाट, 17, 16 के बाद, ठीक है. देन 16 17 हो गया, सो दिस इज कॉल नंबर 18, एंड दिस इज व्हाट, कॉल नंबर 18 के बाद कॉल नंबर 20, then this is call number 21, this is call number 22, and this is call number 23, and again this is call number 24, and this is call number 25, call number 25, and this is call number 26. So observe 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8 9 10 11 12 13 14 15, then 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. I think something is repeated, है ना here. So 11, then 11 के बाद फिर क्या आएगा, 11 के बाद आएगा 12 हो गया, 13 14 15, then 16, and 16 के बाद फिर आएगा 17 18, okay. 19 is missing, okay fine. So 19 is missing, so this is what, this is 19, this is 19, and this is what, this is 20, and this is what, 21, and this is what, 22, and ये आपका होगा 23, और this is what, 24, and this is what, 25. So overall 25 function calls are there. तो अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस आ रहा है, फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस, फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस इस ट्री के अकॉर्डिंग क्या फॉलो हो रहा है, दैट इज प्री ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस प्री ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ओके. नाउ इवेल्युएशन सबसे पहले किसका हुआ, इवेल्युएशन मींस रिजल्ट किसका निकला सबसे पहले. तो रिजल्ट हम देखेंगे
तो पहले कॉल तो हुआ था ये 6 फिबोनाची ऑफ 6, बट 5 को कॉल किया, 4 को कॉल किया, है ना, 3 को कॉल किया, 2 को कॉल किया, 1 को। तो लेफ्ट मोस्ट साइड में बिल्कुल, है ना, लीफ नोड जो है फिबोनाची ऑफ 1, पहले ये रिजल्ट एवेल्यूएट हुआ, फिर इसके बाद ये राइट साइड का हुआ, फिर ये हुआ। तो लेफ्ट राइट और नोड, लेफ्ट राइट और नोड ये किस में फॉलो होता है? ये फॉलो होता है लेफ्ट राइट और नोड होता है हमारा व्हाट, पोस्ट ऑर्डर में। तो ये फंक्शन इवेल्युएशन जो है, यहां पर फंक्शन इवेल्युएशन जो हो रहा है, ठीक है, फंक्शन इवेल्युएशन क्या फॉलो कर रहा है? फंक्शन इवेल्युएशन इज फॉलोइंग पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ओके, so I hope this is clear to you, है ना, up till now. So result is what? 8 for this particular problem. Now observe very carefully. So function calling sequence क्या है? We know function calling sequence क्या follow हो रहा है? Function calling sequence is what? Calling sequence is pre-order. Function calling sequence is pre-order. Next is what? Function evaluation sequence क्या हो रहा है? तो ये भी मैंने आपको बताया, this is what? Post order. ट्री के अकॉर्डिंग, है ना। इन विच ऑर्डर फंक्शन विल बी कॉल्ड इन रिकर्शन? तो अगेन किस ऑर्डर में फंक्शन कॉल हो रहा है रिकर्शन में? हमेशा ऑलवेज प्री ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है। पहले सेल्फ फंक्शन कॉल होगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, फिर राइट में जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इन फिबोनाची एन आफ्टर हाउ मेनी फंक्शन कॉल्स फर्स्ट एडिशन विल टेक प्लेस, है ना। तो फर्स्ट एडिशन कितने फंक्शन कॉल्स के बाद हुआ? तो अगर हम केयरफुली यहां ऑब्जर्व करें फर्स्ट एडिशन, ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन आपका कहां हुआ? देखिए फर्स्ट एडिशन आपका ये हुआ A1, ठीक है, A1। तो A1 कितने फंक्शन कॉल्स के बाद हुआ? A1 आपका हुआ 6 को कैलकुलेट करना था, तो 6 के कॉलिंग के लिए C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 जब रिजल्ट आया तभी। तो 6 के केस में 7 टाइम्स हुआ, है ना, 7 फंक्शन कॉल्स के बाद हुआ। तो n के केस में कितना होगा? n के केस में इट विल बी n+1, है ना। तो n+1 फंक्शन कॉल्स के बाद क्या होगा? आपका फर्स्ट जो एडिशन है वो इवेल्युएट होगा। ओके, नाउ वी आर एनालाइजिंग इन डिटेल। ओके, सो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स की बात करता हूं मैं और नंबर ऑफ एडिशंस की। तो फिबोनाची ऑफ 0 में कितने फंक्शन कॉल होंगे? सिंपली फिबोनाची ऑफ 0 कॉल करेंगे, 1 से रिटर्न हो जाएगा, 1 ही होगा। फिबोनाची ऑफ 1 में कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, फिबोनाची ऑफ 0 में कोई एडिशन नहीं होगा, सिंपली 0 वैल्यू रिटर्न होगी, तो नो एडिशन है, नंबर ऑफ एडिशंस 0। फिबोनाची ऑफ 1 में नंबर ऑफ एडिशंस अगेन 0। फिबोनाची ऑफ 2 के केस में क्या कॉल होगा? फिबोनाची ऑफ 2 के केस में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फिबोनाची ऑफ 2 कॉल हुआ, फिबोनाची ऑफ 2 होगा, फिबोनाची ऑफ 1 होगा और फिबोनाची ऑफ 0 होगा। तो कितने हुए? 1, 2 एंड 3, तो 3 फंक्शन कॉल्स। और एडिशन कितना होगा? एडिशन केवल इन दोनों का होगा, तो ओनली 1 एडिशन विल बी देयर। सिमिलरली फिबोनाची ऑफ 3 के केस में क्या होगा? फिबोनाची ऑफ 3 के केस में आपने f ऑफ 3 को कॉल किया, फिर इसने f ऑफ 3 ने किसको किया होगा? f ऑफ 2 को और f ऑफ 1 को, फिर इस f ऑफ 2 ने किसको किया होगा? f ऑफ 1 को और f ऑफ 0 को। तो ओवरऑल 5 कॉल्स गए, बट एडिशंस कितने होंगे? एक यहाँ एडिशन होगा और एक यहाँ एडिशन होगा। तो नंबर ऑफ एडिशंस कितने होंगे? 3 के केस में 2 एडिशंस होंगे। ओके, सो अगर फिबोनाची ऑफ n को, अगर मुझे फिबोनाची ऑफ n में नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स कैलकुलेट करना है, कितने होंगे? तो ये होंगे 2 टाइम्स multiplied with what? Fibonacci of n+1 वैल्यू, नेक्स्ट फिबोनाची की वैल्यू एंड -1। सिमिलरली अगर मुझे एडिशंस काउंट करना है, नंबर ऑफ एडिशंस कितने होंगे? तो फिबोनाची ऑफ n के केस में नंबर ऑफ एडिशंस होंगे, फिबोनाची ऑफ n+1 का जो वैल्यू होगा वो, एंड दिस -1। ऑब्जर्व कर लेते हैं 5 की फिबोनाची ऑफ व्हाट? फॉर एग्जांपल फिबोनाची ऑफ 5 में कितने नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स होंगे, है ना, फंक्शन कॉल्स। तो कितने होंगे? 2 टाइम्स ऑफ फिबोनाची ऑफ 6 वैल्यू, है ना, फिबोनाची ऑफ 6 वैल्यू एंड -1। और सिमिलरली नंबर ऑफ एडिशंस कितने होंगे फिबोनाची ऑफ 5 के केस में? तो फिबोनाची ऑफ 5 के केस में नंबर ऑफ एडिशंस होंगे फिबोनाची ऑफ 6 वैल्यू एंड -1। तो अभी मैंने कैलकुलेट किया है प्रीवियसली ट्री में, फिबोनाची ऑफ 6 की वैल्यू कितनी है? 8 निकाली थी हमने, है ना, -1। तो ये कितना आएगा? 16 - 1 इज 15। तो 15 फंक्शन कॉल्स होंगे। और यहाँ पर फिबोनाची ऑफ 5 में अगर मैं बात करता हूँ कि नंबर ऑफ एडिशंस कितने होंगे, तो फिबोनाची ऑफ 6 की वैल्यू कितना निकली थी हमारी? 8। 8 - 1 कितने होंगे? 7 होंगे, ठीक है। तो 7 एडिशंस होंगे। तो ये हम यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है, कि 15 हुए और 8 हुए।
ओके, सो यहाँ पर कितना आएगा, ये चेक भी कर सकते हैं कि फिबोनाची ऑफ 5 में कितने फंक्शन कॉल्स हुए। 15 फंक्शन कॉल्स हुए, लेट अस सपोज फिबोनाची ऑफ 5 में। सो फिबोनाची ऑफ 5 ये है, ठीक है। फिबोनाची ऑफ 5 में कितने फंक्शन कॉल्स हुए, 15। तो देखिए ऑब्जर्व करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10 11 12 13 एंड 14 15, तो 15। और नंबर ऑफ एडिशंस कितने हुए, तो 1 2 3 4 5 and 6 and 7, तो 7 हुए एडिशन। तो सी हियर व्हाट है ना, 7 एडिशंस हुए, नंबर ऑफ एडिशन, और नंबर ऑफ व्हाट ये हुए हमारे फंक्शन कॉल्स हुए हमारे, इट इज 15, है ना। तो इन जनरल वी कैन से, है ना, जैसे हम अपने ही केस में अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो इट इज वेरी मच एविडेंट, है ना। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इन व्हाट order functions will be evaluated in recursion. So function will be evaluated in post order, we already saw। फंक्शन evaluation किस ऑर्डर में होता है, पोस्ट ऑर्डर में। पहले लेफ्ट होगा, राइट होगा, फिर नोड का, ठीक है। इन फिबोनाची ऑफ n after last function call is there any addition? So after last function call, so what is the last function call? Last function call, observe carefully, लास्ट फंक्शन कॉल क्या था हमारा, ये C25। इसके बाद एडिशन था, यस, दिस A10 एडिशन, ओके। सो आफ्टर लास्ट फंक्शन कॉल देयर इज एन एडिशन, सो आफ्टर लास्ट फंक्शन कॉल देयर इज एन एडिशन, यस, ओके। एंड एडिशन इज व्हाट, A10, व्हाट आफ्टर C25, call 25, okay, as another example. Now in Fibonacci of n, is there any function call after last addition? So there is no function call after last addition। last addition क्या होगा हमारे केस में, last addition होगा ये 12। तो जब ये addition हो गया तो इसके बाद तो कोई function call हुआ नहीं। So then the answer is what? Answer for this question is no। Means n के Fibonacci calculate करना है, is there any function call after last addition? So it is no, no, okay। So as an example in our case, है ना, after A12 addition number 12 number 3, है ना, addition number 12, what, no function call, no function call, okay। So I hope that this is clear to you, है ना, we are going into detail, है ना। Now next is what, in Fibonacci of n how many function calls are there? So कितने function calls होंगे, तो number of function calls is always Fibonacci n में आपके जो number of function calls होते हैं, number of function calls, what in Fibonacci of n? So number of function calls आपके कितने होंगे, 2 times Fibonacci of n plus 1 value, ओके। नेक्स्ट n की निकालना है, तो n plus 1 की वैल्यू होगी Fibonacci की, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का एंड -1। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ इन Fibonacci of n हाउ मेनी एडिशंस आर देयर? सो नंबर ऑफ एडिशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ एडिशंस, सो नंबर ऑफ एडिशंस व्हाट इन Fibonacci of n? तो Fibonacci of n के केस में नंबर ऑफ एडिशंस हमारे होंगे व्हाट, Fibonacci of नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट एलिमेंट का Fibonacci वैल्यू, so n plus 1 and -1, already we saw this as an example. Now in Fibonacci of n, depth of the stack or height of the stack or height of the tree, तो जो height of the tree होगा वही क्या होगा, stack का depth होगा। तो Fibonacci of n के केस में कितना होगा, n, okay। and if we talk about what, अगर n है तो number of जो है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का, या आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है व्हाट, Fibonacci ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर n। तो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 2 raised to the power n। सो 2 raised to the power n means exponential time complexity। So it is what, exponential time complexity, exponential time complexity। Why it is exponential? Because आपका n डेप्थ है और हायर डेप्थ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, दो दो, है ना। तो ट्री की हाइट n है, हर एक पे मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 2 possibilities are up to n, so 2 into 2 into 2 n times, so 2 raised to the power n। Similarly space भी कितना होगा, space complexity is also 2 raised to the power n, because every function call में हमें space लगेगा, तो space complexity is also, it is exponential, so it is also exponential, okay।
So I hope that this Fibonacci series concept है ना is very much clear to you people, है ना. We saw it in very much detail, है ना, and while deriving some formulas and some things, means how the function calling sequence is there, so it is pre-order, and how the function evaluation sequence is there, so it is post order. Okay, number of function calls है ना in Fibonacci of n, so it is 2 into next Fibonacci value minus 1, and number of additions, so it is nothing but Fibonacci of next Fibonacci value minus 1. Okay, so now let us move to another. So this is Towers of Hanoi. This is also an important important problem, है ना, which can be solved with the use of what, stack. So stack is, that's why stack is very popular data structure, है ना. And the beauty of stack is that, so if any problem or any such a problem which we cannot solve, okay, directly, so by hook or crook we can, if we apply our mind, and so then that problem can be solved with the use of what, stack data structure. So that is the beauty of this data structure. That's why stack is what, ultimate data structure. But anyhow, all the data structures are having their own advantages and disadvantages. So this is also having, but it is what, beautiful data structure. So now Towers of Hanoi. So what is the problem of Towers of Hanoi? Understand very carefully. So there are three towers. There are three towers. Understand very carefully. There are three towers. Three towers are there. एंड हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ डिस्क हैं टावर्स पे. सो लेट मी टेक डिस्क ऑल्सो. तो यहाँ 3 डिस्क हैं जिनके साइज अलग अलग हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पहला डिस्क ये है, दूसरा डिस्क ये है, और तीसरा डिस्क ये है. डिस्क एनी नंबर ऑफ डिस्क हो सकती है. अभी फिलहाल मैंने जो नंबर ऑफ डिस्क अज्यूम किए हैं, नंबर ऑफ डिस्क वो कितने हैं, 3 अज्यूम किए. नंबर ऑफ डिस्क मीन्स n की वैल्यू 3 अज्यूम किया है. ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये लेफ्ट टावर है, ये मिडिल टावर है, और ये राइट टावर है. सो प्रॉब्लम ये है, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमको क्या करना है, मूव करना है, मूव, है ना, ऑल द डिस्क फ्रॉम व्हाट, लेफ्ट टू राइट, है ना, यूजिंग व्हाट, यूजिंग मिडिल. ओके, एंड कंस्ट्रेंट है यहाँ पे कुछ. कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, मीन्स bigger disk is not allowed, bigger disk is not allowed to put upon what, smaller one. स्मॉलर वन मीन्स बिगर डिस्क को स्मॉलर डिस्क पे हम अलाउ नहीं कर सकते. तो एज एन एग्जांपल, अभी तो हमें दिख रहा है बहुत आसान है, 3 डिस्क है ना. तो हम पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ से जो फर्स्ट डिस्क है उसको हम क्या, कहाँ मूव कर देंगे, राइट साइड में. ठीक है, फिर जो सेकंड डिस्क है उसको हम करेंगे मिडिल में, फिर राइट से स्मॉलर डिस्क उठा के मिडिल में रख देंगे, और स्मॉलर से लेफ्ट से बड़ी डिस्क उठा के कहाँ रख देंगे, वहां पे राइट में, और फिर यहाँ से स्मॉलर यहाँ, फिर वो यहाँ, फिर वो यहाँ. सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व. But assume that if n is what, 100 or n is 1000, okay, then means किस तरीके से इसको हम solve करेंगे. So at that time stack is very important. Okay, so now let us see the algorithm for this. So what is the algorithm? TOH stands for Towers of Hanoi. N is number of disk, number of disks कितनी है n. तो हमें, ये हमारा सोर्स है, सोर्स क्या है हमारा, ये हमारा सोर्स हो गया, सोर्स क्या है हमारा लेफ्ट, और ये हमारा हो गया डेस्टिनेशन. कहाँ पहुंचाना है हमको, राइट में. तो लेफ्ट टू राइट पहुंचाना है विद द यूज ऑफ मिडिल. सो इन बिटवीन जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं. बट हमें सोर्स लेफ्ट में रहेगा, मीन्स फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट होगा वो सोर्स होगा, लास्ट आर्ग्यूमेंट हमारा डेस्टिनेशन होगा. तो अगर n की वैल्यू 0 है तो सिंपली रिटर्न करेंगे, रिकर्सिव प्रोग्राम होगा बिकॉज स्टैक यूज हो रहा है. और एल्स में ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. सो एल्स में क्या करेंगे हम, एल्स में यहाँ पर सबसे पहले n-1 डिस्क को. तो हमारा मेन टारगेट ये है यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ n डिस्क हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 टावर्स हैं, लेफ्ट, मिडिल एंड राइट. तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास n है. ठीक है, तो n को हमें कहाँ मूव करना है, हमें मूव करना है यहाँ पर, n को यहाँ मूव करना है.
तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को हमने सब पार्ट में डिवाइड किया। तो पहला पार्ट में क्या किया हमने कि फर्स्ट पार्ट में हमारा टारगेट ये रहा कि यहाँ से हम n-1 को लेफ्ट टू राइट मूव कर देते हैं। मीन्स यहाँ पर n में से हम n-1 लेते हैं और इसको कहाँ मूव कर देते हैं, मिडिल पे मूव कर देते हैं। ठीक है, सो मिडिल पे मूव करते हैं हम इसको, तो मिडिल पे कितनी आ जाएंगी n-1। ठीक है, और फिर हम मूव कर देंगे लेफ्ट टू राइट। सो लेफ्ट से राइट को जो वन डिस्क यहाँ रिमेनिंग है ना, वन डिस्क, वो हम यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव कर देंगे। सो दिस इज द सेकंड स्टेप। और फिर थर्ड स्टेप में फाइनली क्या होगा कि हमारा यहाँ ब्लैंक हो चुका है और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा n-1 डिस्क है और राइट में क्या हो चुका है, राइट में हमारी वन डिस्क है। ठीक है, यहाँ पर तो फिर हमारा टारगेट क्या है कि मिडिल से, ये लेफ्ट है, ये मिडिल है और ये राइट है, तो हमें मिडिल से n-1 डिस्क को कहाँ मूव करना है, राइट साइड में मूव करना है। ठीक है, राइट साइड में मूव करना है विद द यूज ऑफ व्हाट, लेफ्ट का यूज करके। सो दिस इज, तो यहाँ पे दो फंक्शन कॉल्स हैं, दोनों ही क्या है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल है, TOH ऑफ n-1 लेफ्ट राइट मिडिल, है ना, मूव। सो बट हमें ये है ना कीप इन माइंड कि फर्स्टली हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्टली हमको सबसे पहला टास्क हमारा है कि हमें ये जो है ना, अगर LMR के लिए आए हैं तो पहले लेफ्ट टू जो फर्स्ट है, तो लेफ्ट से हमें कहा मिडिल पे मूव करना है राइट का यूज करते हुए। देखिए फर्स्ट में लेफ्ट से मिडिल पे मूव करना है राइट का यूज करते हुए, और फिर नेक्स्ट क्या करना है कि मिडिल से राइट पे मूव करना है ना, तो मिडिल से राइट पे मूव करना है किसका यूज करते हुए, लेफ्ट का यूज करते हुए। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। तीन स्टेटमेंट्स हैं। ओके, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली हाउ द स्टैक विल डू दिस पर्टिकुलर टास्क। ऑब्जर्व वेरी वेरी केयरफुली। Okay, now I am taking what TOH of हमारी तीन डिस्क है, हमें लेफ्ट से मिडिल का यूज करते हुए राइट का मूव करना है। ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो पहला हमारा जो है टास्क क्या होगा, सबसे फर्स्ट टास्क हमारा होगा कि TOH, हम टावर्स ऑफ हनोई को कॉल करेंगे। n-1 मीन्स टू डिस्क को हम कहां से कहां करना है, पहले हमें लेफ्ट से कहाँ करना है, मिडिल पे मूव करना है बाय द यूज ऑफ व्हाट, राइट। ओके, और फिर सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है उसका प्रिंट करना। तो प्रिंट हमें क्या करना है, प्रिंट हमें करना है व्हाट, लेफ्ट से राइट मूव करना है, तो प्रिंट हमें करना है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और फिर थर्ड पार्ट क्या है, यहाँ पे थर्ड पार्ट है हमारा फर्दर TOH कॉल करना है। तो TOH किसके लिए कॉल करेंगे, अब हमें कहाँ से कहाँ कॉल करना है, तो हमें पहले यहाँ फर्स्ट से सेकंड पे मूव किया था, तो यहाँ फिर हमें थर्ड में क्या करना है कि मिडिल से हमें राइट पे मूव करना है ना, तो मिडिल से मतलब ये थर्ड जो आर्गुमेंट है, थर्ड से हमें राइट पे मूव करना है। तो हमें दो डिस्क को अगेन टू डिस्क फ्रॉम मिडिल M टू व्हाट, राइट मूव करना है विद द यूज ऑफ L। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होगा, बड़े ही केयरफुली ऑब्जर्व करिए कि मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, कि जो भी यहाँ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट से पहले मैं मिडिल पे ले जा रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, मिडिल मतलब सेकंड, तो फर्स्ट से सेकंड पे ले जा रहा हूं, तो फर्स्ट से सेकंड पे ले गया, और फिर आगे में क्या किया मैंने कि सेकंड से थर्ड पे ले जा रहा हूं, तो देखिए सेकंड से मैं थर्ड पे ले गया, बचा हुआ बीच में रखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि L से मैंने R पे ले गया, ये फर्स्ट से मैं कहा ले गया, मिडिल पे। ठीक है, तो फर्स्ट से मींस फर्स्ट आर्गुमेंट से सेकंड आर्गुमेंट पे ले गया, तो सी दिस फर्स्ट आर्गुमेंट से सेकंड आर्गुमेंट पे, बचा हुआ बीच में रखूंगा मैं। ठीक है, और फिर जो फर्स्ट से मुझे यहाँ पे ले जाना था L to R, तो ये मैंने प्रिंट किया, और फिर थर्ड सेकंड कॉल में क्या किया मैंने, ये जो सेकंड आर्गुमेंट था, सेकंड आर्गुमेंट से थर्ड आर्गुमेंट पे ले गया, तो बचा हुआ आ जाएगा बीच में, तो M से R ले गया, बचा हुआ L आ गया बीच में। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम टास्क, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। ओके, सो दिस अगेन आई एम कॉलिंग व्हाट, TOH। ओके, TOH, तो TOH किसको कॉल करेंगे, TOH ऑफ 2-1 मीन्स 1 को मुझे कहाँ मूव करना है, तो फर्स्ट से मुझे सेकंड पे ले जाना है पहले। ठीक है, आर्गुमेंट मैंने बताया था फर्स्ट से सेकंड पे, तो मुझे L से, यहाँ फर्स्ट मेरा L है और सेकंड क्या है R, तो L से मुझे R पे ले जाना है, और यूज किसका करना है, जो बचा हुआ क्या है M। और फिर सेकंड मेरा टास्क क्या था, सेकंड मेरा था प्रिंट करना है, तो प्रिंट क्या करना है, यहाँ फर्स्ट से मीन्स जो भी फर्स्ट था, फर्स्ट टू थर्ड प्रिंट कर देना है, तो यहाँ L to M प्रिंट कर देंगे। और फिर थर्ड टास्क यहाँ क्या है, थर्ड टास्क यहाँ पर मेरा है कि मुझे टावर्स ऑफ हनोई कॉल करना है, और सेकंड आर्गुमेंट से थर्ड आर्गुमेंट पे ले जाना है, तो यहाँ से 1 को सेकंड आर्गुमेंट क्या था R, उससे कहाँ ले जाना है, थर्ड क्या है M, और है ना
थर्ड क्या है एम, और यूज किसका करना है, सेकंड से थर्ड पे ले जाना है ना, तो सेकंड से थर्ड पे ले गया और यूज किसका करना, बचे हुए, तो बचा हुआ क्या है एम। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, आई एम अगेन रिपीटिंग कि पहले मुझे फर्स्ट से, है ना, फर्स्ट से कहाँ ले जाना है, व्हाट, फर्स्ट से मुझे सेकंड पे ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से एल से मैं कहाँ ले गया, फर्स्ट से सेकंड पे ले गया, तो एल से आर ले गया, देखिए एल से आर ले गया, बचा हुआ बीच में। फिर अगले में क्या करना है, सेकंड से थर्ड पे ले जाना है, तो सेकंड से थर्ड पे ले गया, ठीक है। अगेन यहाँ भी मैं सेम करूंगा, तो यहाँ मैं सेम करूंगा, तो पहले आएगा टी ओ एच, तो यहाँ वन आएगा, फिर क्या फर्स्ट से सेकंड पे ले जाना है, तो एम टू एल ले जाना है, तो एम मीन्स सोर्स यहाँ आएगा और एल मीन्स डेस्टिनेशन यहाँ आएगा, किसका यूज करना है, आर का। ओके, देन प्रिंट करना है, तो प्रिंट क्या करेंगे, फर्स्ट से थर्ड वाले पे, तो एम टू आर प्रिंट करेंगे यहाँ पे, एम टू आर, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। एंड थर्ड इज व्हाट, थर्ड हमें यहाँ टी ओ एच कॉल करेंगे, तो सेकंड से हमें थर्ड पे ले जाना है, तो एक डिस्क को सेकंड क्या था एल और एम का यूज करेंगे और थर्ड पे ले जाएंगे, थर्ड क्या है हमारा आर, ठीक है। सो एल टू आर ले जाना है, सो एल टू आर थ्रू बाय द यूज ऑफ मिडल। नाउ अगेन दिस वन, सो ये कब तक करना है, जब तक जीरो ना हो जाए ना, तो जीरो इस स्टेप में हो जाएगा आई थिंक। सो हेयर टी ओ एच कॉल किया, तो यहाँ वन माइनस वन क्या है, जीरो, जीरो कहाँ से कहाँ ले जाना है मुझे, जीरो फर्स्ट से सेकंड पे ले जाना है, तो फर्स्ट से सेकंड पे ले जाऊंगा, मीन्स एल से एम ले जाना है मुझे, एल से एम ले जाना है, किसका यूज करके, आर का यूज करके। और फिर फर्दर स्टेप में क्या है, प्रिंट करना है फर्स्ट से थर्ड, सो फर्स्ट से थर्ड क्या है, एल टू आर, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, है ना। देन आफ्टर दैट मैंने क्या करना है, फिर टी ओ एच कॉल करना है और सेकंड से थर्ड ले जाना है, तो सेकंड से थर्ड क्या ले जाऊंगा, जीरो, सेकंड से थर्ड, तो सेकंड क्या है इसमें, एम से आर ले जाना है, तो मुझे ले जाना है एम से और आर ले जाना है विद द यूज ऑफ एल बचा हुआ, ठीक है। और यहाँ मैं देखूंगा, तो यहाँ भी मेरे फिर तीन टास्क हैं, ऑब्जर्व केयरफुली। तो फर्स्ट टास्क क्या है कि टी ओ एच कॉल होगा और वन माइनस वन मीन्स किसके लिए, जीरो के लिए, और फिर मुझे कहाँ ले जाना है, फर्स्ट से सेकंड पे, तो आर टू एल ले जाना है, आर टू एल ले जाना है, बचा क्या है एम का यूज करके। और फिर यहाँ प्रिंट करना है, तो प्रिंट क्या करेंगे, फर्स्ट से थर्ड, तो क्या है, फर्स्ट आर है और थर्ड क्या है एम, ये मूव कर देंगे। और फिर थर्ड में अगेन टी ओ एच को कॉल करेंगे, तो टी ओ एच जब कॉल होगा तो सेकंड से थर्ड ले जाना है, तो सेकंड से थर्ड मीन्स एल टू एम ले जाना है, तो यहाँ जीरो को एल टू एम ले जाना है विद द यूज ऑफ आर, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। ओके, सो दिस, पहले मैं ये ट्री ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर इसका सीक्वेंस ऑटोमेटिकली आपको पता है क्या सीक्वेंस फॉलो होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आए, तो यहाँ मुझे टी ओ एच करना है, तो यहाँ जीरो डिस्क ले जाना है फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट से सेकंड मीन्स एम टू आर ले जाना है, तो एम टू आर ले जाना है, तो बचा क्या एल का यूज करके। और यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, सो व्हाट विल बी प्रिंटेड, फर्स्ट टू थर्ड, सो फर्स्ट टू थर्ड इज एम टू एल विल बी प्रिंटेड, ओके। एंड देन आफ्टर दैट अगेन कम हियर, so here is what, here is TOH of then 0 सेकंड टू थर्ड ले जाना है, तो R टू L ले जाना है, तो यहाँ मैं R टू L ले जाऊंगा और किसका यूज करूंगा, M का यूज करूंगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट कम हियर, सो हियर अगेन थ्री पार्ट्स आर देयर, सो 1 एंड 2 यहीं प्रिंट कर लेंगे और थर्ड पार्ट इज अगेन हियर। सो व्हाट, फर्स्ट मुझे यहाँ TOH करना है, सो 1 माइनस 1 करेंगे, सो इट इज जीरो। अब मुझे कहां से कहां ले जाना है, फर्स्ट से सेकंड पे, तो फर्स्ट क्या है एल टू एम, पहले फर्स्ट से सेकंड पे ले जाना है, फिर फर्स्ट से थर्ड प्रिंट करना है, फिर सेकंड से थर्ड पे ले जाना है। तो फर्स्ट से सेकंड ले जाऊंगा तो एल टू एम मूव करूंगा, तो मैंने एल टू एम ले जाना है, किसका यूज करके, व्हाट रिमेनिंग, आर का यूज करके। फिर यहाँ प्रिंट करना है, तो प्रिंट क्या करना है मुझे, फर्स्ट से थर्ड, सो एल टू आर प्रिंट करना है, एल टू आर। और फिर थर्ड में क्या है, थर्ड वाला जो रिकर्सिव कॉल है उसमें सेकंड से थर्ड ले जाना है, सेकंड से थर्ड मींस एम टू आर ले जाना है, सो इट इज जीरो फ्रॉम एम टू आर, और किसका यूज करके, एल का यूज करके। नाउ इस ट्री में आपके सारे के सारे आप देखें एन की वैल्यू जीरो हो चुकी है, लीफ नोट्स जो आए हैं उनमें एन की वैल्यू जीरो हो चुकी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा फिर हमारा, कि जब यहाँ पर जीरो हो गया है, जीरो, तो एन की वैल्यू जीरो के केस में क्या करना है, रिटर्न करना है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न होगा, तो रिटर्न होगा मींस दिस विल बी एग्जीक्यूटेड। फिर इसके बाद पहले क्या प्रिंट होगा, तो सबसे पहला प्रिंट क्या हुआ, सबसे पहला प्रिंट हुआ स्टेप ये, सो दिस इज द फर्स्ट, ओके। इसके बाद फिर ये राइट साइड वाला आया, तो राइट साइड में भी वैल्यू जीरो है, तो यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, तो फिर नेक्स्ट क्या प्रिंट हुआ, नेक्स्ट प्रिंट होगा मेरा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रिंट हुआ ये। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो फंक्शन कॉलिंग क्या है,
फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग आपका है प्री ऑर्डर, ठीक है। पहले सबसे टॉप वाले को कॉल आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, लाइक दिस, है ना, सिमिलरली। और आपका फंक्शन इवेल्युएशन क्या है, तो फंक्शन जो इवेल्युएट हो रहा है दैट इज फंक्शन इवेल्युएशन। तो फंक्शन इवेल्युएशन ऑलवेज क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर पहले लेफ्ट होता है, राइट होता है, फिर नोड होता है ना। तो यहाँ 0 हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ इसको कंप्लीट किया, फिर ये राइट साइड में कॉल करने आए, तो यहाँ फिर इसके बाद फिर लेफ्ट में आए, तो यहाँ 0 हुआ, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, वापस आए, तो ये थर्ड वाला क्या हुआ, थर्ड वाला स्टेप ये हुआ, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। देन इसके बाद फिर ये 0 वाला कंप्लीट हुआ, तो वापस आए, तो ये कंप्लीट हो गया, फिर ये कंप्लीट हुआ, तो ये कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पर आए, तो ये प्रिंट होगा, तो प्रिंट हुआ, तो ये कौन से नंबर पे आया, फोर्थ पे। फोर्थ स्टेप ये मूव करना है। फिर यहाँ पर आए 2 पे, तो इसके पहले यहाँ 1 आए, 1 के पहले भी यहाँ 0 आया, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉल क्या होगा, नेक्स्ट प्रिंट क्या होगा, ये, तो ये कौन से नंबर पे आएगा, फिफ्थ पे। फिर इसके बाद 0 है, तो ये रिटर्न कर देगा सिंपली, तो ये कंप्लीट हुआ, फिर रिटर्न होके कहाँ आएंगे, यहाँ, तो ये आए, तो ये प्रिंट करेंगे नेक्स्ट। सो दिस इज नंबर 6, ओके। देन फिर यहाँ राइट साइड में आए, तो 1 के लिए, तो फिर अगेन उसके लेफ्ट में आए, तो यहाँ से 0 से रिटर्न होगा, फिर देन इसको प्रिंट करेंगे, तो ये प्रिंट होके क्या आएगा, सो दिस विल बी प्रिंटेड नंबर 7। और फिर ये 0 कंप्लीट हुआ, तो वापस आए, वापस आए, तो ये भी कंप्लीट हुआ, यहाँ आए, तो ये कंप्लीट हुआ, और वापस आए, तो ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब आप यहाँ अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो ये स्टेप्स मैंने लिखे हैं, तो स्टेप्स इसी ऑर्डर में फॉलो होंगे। तो प्रिंट जो होगा, है ना, प्रिंट होना है आपका व्हाट, प्रिंटेड वैल्यू इज व्हाट, printed value, don't worry, I will show you how. So in TOH of n, after how many function calls first evaluation will be done? Again same question, first evaluation कब हुआ, तो फंक्शन कॉल में, जैसे 3 के लिए किया था, तो पहले TOH 3 आया, 2 आया, 1 आया, 0 आया, है ना। फिर ये है ना, फिर ये evaluation हुआ है इसका, तो कितने हुए, 1 2 3 4 फंक्शन कॉल्स हुए, ठीक है। तो 3 के केस में 4 फंक्शन कॉल्स हुए, तो n के केस में फर्स्ट फंक्शन evaluation कब होगा, n plus 1. Now next is in TOH of n, how many function calls are there? So TOH of n के केस में हमारे जो फंक्शन कॉल्स होंगे, जैसे हमारे अभी TOH of क्या निकाला था, 3, तो 3 के केस में कितने फंक्शन कॉल्स हैं, ऑब्जर्व केयरफुली। फंक्शन कॉल्स टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 3 के केस में 15 है, तो हाउ इट इज कमिंग, इट इज कमिंग लाइक नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स, number of function calls, okay, in TOH of n. तो number of function calls होंगे आपके 2 raised to the power n plus 1 and minus 1. So these many function calls are there. 3 के केस में 15 आया था, तो 2 की power 3 plus 1 4 16 minus 1 है, so this is the same, okay. Now in TOH how many moves are there? तो number of moves कितने होंगे, तो number of moves आपके यहाँ पे देखें कितने moves हुए, moves means print कितने हुए, 7 print statements, है ना, नंबरिंग भी किया है मैंने, तो 7 आया, तो 3 के केस में 7 आया, है ना। सो वी कैन से इन जनरल कि नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मूव्स, ओके, इक्वल्स टू, इन केस ऑफ TOH ऑफ n, नंबर ऑफ मूव्स कितने होंगे, 2 raised to the power n minus 1. So 2 raised to the power 3 minus 1 means 7. So this is one more, है ना, required solution. Okay, now time complexity for this TOH is what? Time complexity for this TOH is your what? It is again exponential. So time complexity for this TOH is 2 raised to the power n, and order of 2 raised to the power n. So that is what? Exponential time complexity. So it is exponential time complexity. Okay, and similarly space complexity is also this same. So it is also the space complexity. Okay, now next is there any function call after last move? So after last move is there any function call? Yes, definitely. लास्ट मूव के बाद भी फंक्शन कॉल हुआ है, ऑब्जर्व केयरफुली। लास्ट मूव मेरा ये 7 है, इसके बाद फिर कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, ये लास्ट वाला है ना, सो देयर इज अ फंक्शन कॉल। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, यस, डेफिनेटली यस, ओके। And is there any move after last function call? तो no, there is no move after last function call. Move सारे हो चुके थे, है ना, so no move after last function call. Okay,
So after how many what function calls there is a R2M means R2M means राइट टू मिडिल मूव कितने फंक्शन कॉल्स के बाद हुआ, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट टू मिडिल मूव हुआ, फर्स्ट मूव राइट टू मिडिल, फर्स्ट मूव राइट टू मिडिल। सो सी दिस, ये लेफ्ट टू राइट है, ये है ना लेफ्ट टू मिडिल है, ये है राइट टू मिडिल, ये दिस थर्ड नंबर। तो ये कितने फंक्शन कॉल्स के बाद हुआ, तो 1 2 3 4 5 देन 6 देन 7, तो 7 के बाद इसका नंबर आया है ना, तो 7 फंक्शन कॉल्स। ओके, so it is after 7 function calls, after 7 function calls, function calls। मूव्स क्या क्या हुए हमारे, जो प्रिंट मूव्स या जो हमने प्रिंट किया, तो सबसे पहला प्रिंट क्या हुआ, सो फर्स्ट हमारा हुआ LR, देन सेकंड हुआ हमारा व्हाट, ऑब्जर्व केयरफुली, सो LR, देन सेकंड हुआ LM, देन RM, LM RM, so LM and RM, so it is LM and third is RM। now what about fourth, तो फोर्थ हमारा जो मूव रहा that is what, फोर्थ है LR, देन फिफ्थ ML, LR ML MR, LR ML and MR, so this is my fifth move and this is what, sixth move। and what is seventh, seventh is the last one, so what is that, it is what, LR, LR। ओके, सो अब हम ऑब्जर्व करते हैं एन की वैल्यू हमने क्या लिया था, एन की वैल्यू लिया था मैंने 3, तो यहाँ हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, पहले यहाँ क्या थे, ये है 7 मूव्स कराना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पे हम बात करते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ 3 थे, 1 2 एंड 3। तो पहला मैंने मूव क्या किया, फर्स्ट क्या किया, लेफ्ट टू राइट, तो एक डिस्क मूव हो जाएगा, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट टू राइट, तो ये डिस्क उठा के कहाँ डाल देंगे, यहाँ, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर देन आफ्टर दैट अभी करंट सीन क्या होगा, ये होगा समथिंग लाइक दैट। तो ये सेकंड मूव यहाँ पे बताता हूँ, सेकंड मूव क्या हुआ, लेफ्ट टू मिडिल करना है, तो लेफ्ट टू मिडिल करोगे तो यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये बचा था, तो लेफ्ट टू मिडिल करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन इज लाइक दिस। ओके, फर्स्ट के बाद ये, देन सेकंड के बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे बिगेस्ट है, और जो मिडिल वाला था वो यहाँ आ गया, ठीक है। देन आफ्टर दैट थर्ड मूव करते हैं, थर्ड मूव क्या है, थर्ड मूव हमारा है राइट टू मिडिल। सो व्हाट इज राइट टू मिडिल, तो राइट टू मिडिल करेंगे तो दिस वन विल कम हियर। सो क्या हुआ मेरा फोर्थ में कि ये मेरा एम्प्टी हो गया, सॉरी दिस इज एम्प्टी, ओके दिस इज एम्प्टी, एंड राइट टू मिडिल करेंगे, तो राइट टू मिडिल करेंगे तो ये था, इसके ऊपर ये आ गया, और ये ऑलरेडी था यहाँ पे, ठीक है। सो देन यहाँ पे फिर फोर्थ स्टेप में करता हूँ, फोर्थ स्टेप इज व्हाट, लेफ्ट टू राइट मूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, सो मीन्स दिस एंटायर थिंग विल कम हियर, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ फाइनली क्या हुआ हमारा, ये हमारा ब्लैंक हो गया, यहाँ पर ये है, उसके ऊपर ये है, और राइट साइड में सबसे बड़ा वाला है ना डिस्क आ गया। Then fifth move is what? Fifth move is M2L. So what is M2L? M2L means यहाँ से हमको यहाँ मूव करना है। तो फिफ्थ मूव के बाद क्या आ जाएगा? फिफ्थ मूव के बाद मेरा आएगा लाइक दिस कि यहाँ सबसे बड़ा डिस्क है, ये अपने रिक्वायर्ड पॉइंट पे है, और इसके बाद ये बीच वाला है, और छोटा वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे लाइक दिस। ओके, तो आफ्टर दैट व्हाट इज सिक्स्थ मूव? सिक्स्थ मूव इज मिडिल टू राइट। सो मिडिल टू राइट मीन्स ये हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो मिडिल टू राइट जब किया मैंने तो यहाँ था, और इसके ऊपर ये आ गया, और यहाँ ये बचा, ठीक है। देन आफ्टर दैट सेवेंथ अगर करेंगे तो सेवेंथ क्या है हमारा, सेवेंथ है लेफ्ट टू राइट मूव करना है। सो व्हाट इज लेफ्ट टू राइट, लाइक दिस, लेफ्ट टू राइट। सो सेवेंथ में हमारा फाइनली क्या मिला, फाइनली हमें जो मिला वो ये है, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट, दिस इज एंड देन दैट। ओके, सो ये फाइनल हमारा आउटपुट ये आया। तो इस तरीके से मूवमेंट्स होंगे इनके।
So I think that you are getting this, and so this like this, so then this, so then this part, so then after third, then this part, then this part, and then fourth, then this part, then fifth one is then this part, then sixth is what, this, and then seventh is this, and this is what, this is going to be the solution, and this is what, this is the problem, original problem. So this is the problem. So these movements are, these all the movements are what, using stack. We are all doing this with the help of what, stack. So I hope that these two applications, so what, the very first one is your Fibonacci series or Fibonacci of a particular number, and the next one is Towers of Hanoi problem. So these two are important problems and popular problems, and which can be solved with the help of what, stack. So these two problems and their solutions are clear to you people, and if you are liking the content, then please like, subscribe, and share this channel with your learning community, so that others will also get benefited from this channel. So happy learning to all of you, and stay safe.